College. Now, we are going to invite Mr. Mridul Sibhare sir, Assistant Commissioner, to deliver his speech. So we are actually eagerly waiting for him to listen to him. Welcome you, sir. Good morning, respected principals of Sabadgram College, all the faculty members, all the bright young minds present here. A very warm morning to everyone. I think DC sir has already spoken about multiple facets of the civil service examination. कि आपको क्या पढ़ना होता है और जो एक philosophical overview है एग्जाम का, what inspired, what motivated, how to stay motivated. I think sir has very well explained all of you that what should be done and how to stay motivated. As right now I am undergoing a probation in Dhubri district. जैसा आपको पता होगा कि मैं 2022 बैच का मेंबर हूँ IAS फ्रेटर्निटी का, और राइट नाउ आफ्टर माय ट्रेनिंग इन लवासना लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे कि आप सबदग्राम कॉलेज के स्टूडेंट हैं, मैं भी लवासना का स्टूडेंट हूँ इस समय. तो राइट नाउ आई एम अंडरगोइंग ट्रेनिंग फ्रॉम द लवासना साइड एंड दिस इज अवर डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग. तो जस्ट गिव एन ओवरव्यू कि आपका जो ट्रेनिंग होता है IAS का, उसमें आपका सैंडविच पैटर्न होता है. फॉर 9 months वी स्टे इन लवासना मसूरी, फॉर a year we stay in district, and again we go for 2 months in Delhi, and then for phase 2 in Lavaasna. So talking about the preparation of this examination, I guess some of you asked that what qualities are needed to crack this examination and what keep you motivated, what inspired you. So elaborating on what sir said, like what qualities as sir has said, commitment and dedication. So I definitely say one word is sacrifice. You have to, those who want to prepare for the examination, please don't try. There is no scope of trying in this examination, because all of you must be knowing कि सर ने सेक्शन में बताया भी है कि 12 लाख लोग एग्जाम का फॉर्म करता है, 7 से 8 लोग एग्जाम 7 से 8 लाख लोग एग्जाम में अपेयर होता है प्रीलिम्स में. 13 टाइम्स ऑफ वैकेंसी गेट सेपरेट टू प्रीलिम्स. दैट मीन्स अगर आपका वैकेंसी 1000 है तो 13,000 लोग मेंस लिखेगा, 2,2500 के आसपास लोग इंटरव्यू देंगे, एंड फाइनली 180 एज इन द प्रेजेंट गवर्नमेंट 180 इज ऑलमोस्ट द फिक्स वैकेंसी फॉर IAS. मतलब आउट ऑफ दोस 14 lakh only 180 aspirants every year gets into the Indian Administrative Service, and 200 gets into the Indian Police Service, and around 300-400 gets into the standard services like Indian Foreign Service, Indian Revenue Services, Civil Account, Defense Account, and number of services are there. So this is the actual. एक डराने के लिए फिगर नहीं बताया गया है. Should be the reality that what you are. See, you are entering into the sea that has no bottom and no depth. उसका कोई डेप्थ नहीं है. मतलब it is said that everything under the sun is asked by UPSC. To some extent it is true, but I don't believe in that कि सब कुछ पूछा जाता है, क्योंकि you are a generalist, you are not expected to be the specialist. तो जैसे कि आपको लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम में भी कुछ बुक्स लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. तो ये जो बुक्स है ये बहुत बेसिक बुक है तैयारी के लिए UPSC का. द रीज़न की है कुछ लोगों ने पूछा कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना होता है. सर ने आपको एग्जाम्पल दिया CRR SLR का, ठीक है. टॉकिंग अबाउट दिस दैट एग्जाम्पल ओनली, लाइक व्हाट इज आस्क्ड बाय UPSC की प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. दे विल आस्क रिसेंटली RBI has increased the repo rate by 50 basis point. What may be the possible implication on the Indian economy? वो 4 ऑप्शन आपको देंगे, फिर पूछेंगे ओनली 1 and 2 are true, करेक्ट, ओनली 3 and 4 are करेक्ट, ऑल आर करेक्ट, नन ऑफ देम आर करेक्ट. ठीक है. दैट मीन्स आपको कॉलेज में आप पढ़ते होंगे बेसिक इकोनॉमिक्स में कि CRR क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी इंडिया की कहाँ जा रही है, आत्मनिर्भर भारत क्या होता है. बट एक्सटेंडिंग अपॉन दैट आपको ये पता करना होगा कि उसका इम्प्लीकेशन क्या है अगर कोई चीज़ बढ़ती है या फिर घटती है. तो जस्ट ए स्मॉल एग्जाम्पल कि आपने सर ने आपको एग्जाम्पल दिया CRR और SLR का कि वाई बेसिक बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. लाइक
वन क्वेश्चन दे आस्क इन यूपीएससी मेंस कि गांधी जी नहीं होते तो क्या होगा? What would be the nature of the India's freedom movement if महात्मा गांधी was not there? अब हम लोग पढ़ते क्या हैं कि गांधी जी 1915 में आए थे, उन्होंने फिर नॉन कॉपरेशन किया, सिविल डिसोबीडियंस किया, क्विट इंडिया मूवमेंट किया, एंड फाइनली इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट. बट व्हाट यूपीएससी आस्क कि गांधी जी नहीं होते तो क्या होगा? तो फॉर दैट यू नीड वेरी थरो रीडिंग ऑफ द बेसिक बुक्स. मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि 2 किताबें पढ़ने से आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा. 2013 का जो पहले का दिन था वो ऐसे थे कि एग्जाम आपको किताबें पढ़ लेंगे, आपका एग्जाम निकल जाएगा. बट यू कैन नाउ अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन. नाउ एवरीबडी इन दिस कंट्री, नॉट एवरीबडी, ऑलमोस्ट एवरीवन, लाइक इन असम दैट टाइप ऑफ कल्चर इज नॉट देयर. बट इन नॉर्थ इंडिया मतलब हम लोग बोलते हैं पत्थर मार के एक एक्सपेरिमेंट ले जाएगा. मतलब in North Indian cities, any cities, मतलब I am from very, मतलब my district is 1/3 of the total district. My district जो जिले से मैं आता हूँ उसका साइज 1/3 है टोटली का. और वहाँ भी आप अगर पत्थर मार दोगे ना, लेगा सिविल स्प्रेड भी गिरेगा. इतना कल्चर है वहाँ पे जाएगा यूपीएससी का. यहाँ नहीं है. ऐसा नहीं है कि वहाँ कल्चर जो सिलेक्ट हो गए हैं वहाँ से, तो बिल्कुल भी नहीं. फर्स्ट अगर इन हमारे डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट आई ऑफिसर वो 1999 बैच, द ईयर व्हेन आई वाज बोर्न, एंड सेकंड वर मैं आया 2022 में. तो ऐसा नहीं है, कल्चर होने से सिलेक्शन हो ही जाता है. बट यदि आप में से किसी को कोई लगता है कि वी आर एट डिसएडवांटेज पोजीशन, जो लोग दिल्ली में तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान नगर में तैयारी कर रहे हैं, मुखर्जी नगर में हैं, या फिर गुवाहाटी के किसी अकेडमी में कोचिंग वगैरह में, तो नाउ sorry to say, but I don't agree with all this opinion and perception, because now everything is available at the click of your mouse or the click of your phone. Like majority of my preparation was in COVID outbreak जो था, उसमें majority की तैयारी तभी हुई थी. तो आप सभी जानते हैं उस समय तो दिल्ली में रहना संभव नहीं था, तो majority की तैयारी घर से ही हुई थी. लेकिन हाँ, I should not deny कि मैं दिल्ली सब मिला, मैं दिल्ली गाँव रहा हूँ ब्रैकेट्स में 3 months का, 4 months का, फिर वापस कोविड आ गया. तो फ्रॉम बिगिनिंग टू लास्ट अराउंड मैंने 12-13 महीने दिल्ली में निकाले होंगे, ऑब्वियसली निकालेंगे. एंड जो यूपीएससी का मक्का मदीना कहा जाता है, ओल्ड राजेंद्र नगर, सपनों की दुनिया, मतलब मैं सम ऑफ यू मस्ट बी नोइंग अबाउट राजेंद्र नगर, दैट शॉर्ट फॉर्म कॉल्ड ORN. वहाँ पूरा यूपीएससी का कल्चर, अगर कोई इसमें गया नहीं है तो आपको आई जस्ट विजुअलाइज कि आप स्टार्टिंग से लेके जहाँ से रोड, इसको बड़ा बाजार मार्ग बोलते हैं या फिर ओल्ड राजेंद्र नगर, तो वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक सिर्फ वहाँ हवा में यूपीएससी ही है. मतलब जहाँ आपको हर जगह, जहाँ आप यहाँ पे जाएंगे आपको लगेगा मटेरियल पड़ा हुआ है येलो कलर का, मतलब फोटो कॉपी के ऊपर येलो कलर चढ़ा रखा है हम लोगों ने. तो दिस इज द ट्रेंड ऑफ द प्रिपरेशन इन दिल्ली. बट ऐसा नहीं है कि वहाँ जो दिल्ली में रहने वाले लोग हैं उनका सिलेक्शन हो ही जाता है. I just give you very starting figure, very alarming figure. 14 lakh in the country में 140 crore, 14 lakh people every year aspire to be in the most coveted and the most prestigious service of this country. Unfortunately, due to the lack of some preparation, due to lack of some luck, definitely I should say luck, preparation, strategy, they somehow not able to crack this examination. But this is not way, जैसे कि अभी प्रिंसिपल सर ने शुरुआत में अपने ओपनिंग मार्क्स में सफलता के बारे में बात कहा था कि फर्स्ट डिजर्व दैट डिजायर. तो उन्होंने जो कहा कि मैं डिजर्व नहीं कर पाया, फिर आपने ऐसे भी मेंशन किया था. तो आई एम जस्ट सॉरी, आई शुड डेफिनेटली मेंशन है कि सफलता के जो पैमाने हैं हर इंसान के लिए अलग है. ऐसा नहीं है कि पूरे देश में IAS बनना सफलता के अभूतपूर्व और एक बहुत सबसे टॉप नॉच है. अगर ऐसा कोई समझता है यहाँ बैठे कि जो IAS बन जाते हैं वो बस दुनिया में सब कुछ पा लिए हैं, तो उनका बहुत बड़ा भूल है. वरना फिर विराट कोहली भी IAS बनता है. अगर सबको IAS बनना है तो ये नीरज चोपड़ा भी IAS की तैयारी करता है. सब नहीं, तो सबका अपना का फील्ड है. बट you should try, you should work hard, dedicatedly, committedly to achieve in your respective fields. Sir, we have to be honest in our preparation.
That is why I say that before going there, we have to judge our capability, whether we are fit to be there or not to be there. Right. So हाँ मतलब ये आपका है कि सफलता, लेकिन IAS की परीक्षा में पास हो जाना कोई सफलता का पैमाना नहीं है हर इंसान के लिए. मे बी इट वॉज फॉर मी, मे बी इट वॉज फॉर सम ऑफ 10 ऑफ यू, सबके लिए तो नहीं होगा ऑब्वियसली. अब जैसे मान लो किसी को प्रोफेसर बनना है, अब जो कोई IAS बन गया उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है वो, क्योंकि उसको प्रोफेसर बनना है. अब किसी को भाई म्यूजिशियन बनना है तो उसको क्या मतलब है किसी IAS परीक्षा में UPSC क्या होता है, सिविल सर्विस क्या होता है. तो ये एक्चुअली हम जिस सोसाइटी से हम लोअर मिडिल क्लास सोसाइटी से हम आते हैं वहाँ एक समस्या है कि एक हिंदी में सबका होगा, एक IAS के एक अराउंड एक होगा बना रखा है, पता नहीं कौन लोग हैं. सबसे पहली बात तो जैसे मैं आपको पूछूँ, आपको ही पूछूँ कि आज से पहले आप में से कितने लोगों ने आज तक किसी IAS से बात किया था? कितने लोग बात किया? डॉक्टर से सबने किया होगा, इंजीनियर से सबने बात किया होगा, टीचर से सबने बात किया होगा, IAS से बात किसी ने नहीं, शायद नहीं किया होगा. द रीजन ये लोग कम हैं, और कोई रीजन नहीं है, ये लोग हम ही में से एक हैं, बस इनकी संख्या थोड़ी सी कम है, इसीलिए some of them is very special. It may be special for some of them, it may not be special. जैसे कि बहुत सारे लोग IAS में कुछ नहीं है, बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ, मेरे बैचमेट ही हैं, उनको 6 महीना हुआ है नौकरी का, वो बोला छोड़ देगा, नॉट हैप्पी. बिकॉज अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इन लाइफ इज हैप्पीनेस. अब कोई इंसान पढ़ा रहा खुश है, उसको पढ़ाने में मजा आ रहा है, तो वो क्यों IAS की तैयारी करेगा? वो अब IAS बनेगा, उसको 50 तरह के प्रेशर चाहिए हैं, 50 तरह की टेंशन है, ये काम है, ये रिपोर्टिंग है, ये कार्यक्रम कराना है, ये इवेंट है, ये आप समझ सुना कि एक IAS ऑफिसर जो है सर, अभी मैं सर का मेंटी हूँ, सर मेरे मेंटोर हैं, मैं देखता हूँ कि सर का जो दिन है वो स्टार्ट होता है 9:30 एंड इफ इट इज एंडिंग ऑन 9 PM इट इज नॉट एक्सेप्शन, इट इज अ रूल. 9 AM to 9 PM is normal routine of a district commissioner. ठीक है. If being a probationer, being a trainee, if I am starting my day at 9:30 and ending at 7:30, then something must be serious issue. And I don't have even 5% of the responsibility, even 3% of the responsibility of what it is the result. And he is a DC. थिंक अबाउट द चीफ सेक्रेटरी एंड कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया. तो पूरा राज्य है, पूरा देश लाभ है. हर इंसान को इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए, और इसमें कोई भी बुराई नहीं है कि नहीं चाहिए. अब वॉट एवर गिव्स यू हैप्पीनेस शुड बी योर अल्टीमेट गोल. ठीक है. अब अगेन कमिंग टू द पॉइंट ऑफ सम डिसएडवांटेज कुछ लोग लगता है. अरे कुछ लोग अगर बोर हो रहे हैं तो पूछ भी सकते हैं, मतलब डोंट कंसीडर दैट कोई IAS ऑफिसर खड़ा हुआ है, आपको पूछ भी सकते हैं, आपको जो पूछना है पूछ लीजिएगा, एनीथिंग एंड एवरीथिंग यू वांट. बिकॉज द पर्पस ऑफ स्टैंडिंग हियर एंड शेयरिंग थॉट्स विद यू इज दैट नॉट दैट कि आई एम एन IAS ऑफिसर एंड यू आर द स्टूडेंट्स. ऐसा बिल्कुल भी इसका पर्पस नहीं है कि मैं आपसे ज्ञान बांटने आया हूँ, कि मैंने कोई छोटा सा एग्जाम निकाल लिया है, उसकी बेसिस पे मैं समथिंग आई गॉट एंड आई विल जस्ट से व्हाटएवर आई वांट टू से. दिस इज नॉट एट ऑल द पर्पस. जस्ट आप 18-19 साल के हैं, मैं आपसे थोड़ा सा बड़ा हूँ, मैंने आपसे ग्रेजुएशन 2 साल पहले कर लिया था, मैंने आपसे क्लास 12 2 साल पहले कर लिया था. इतना अंतर है आप में और हमें, और बस एक मैंने कोई एग्जाम निकाल लिया, इसका नाम UPSC है, इसलिए टेबल का साइड दूसरा है. दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी, दैट आई क्लियर सम एग्जामिनेशन एंड द साइड ऑफ द टेबल्स आर डिफरेंट. Rest everything assured, everything is same. ठीक है. तो whatever you wish to ask, you can ask anything and everything, be it personal, be it professional, and I just want that I should be able to connect with you. That is the purpose of this examination. That is the purpose of this session, right? So if you want, you can ask anything, whatever you wish like. Hello sir, my name is Arun sir. I just wanted to ask you sir. सर आपने जैसे मेंशन किया सर आपके बीच में कोविड हो गया था, तो उस दौर पे सर आपको कैसा चैलेंज फेस करना पड़ा था? वो क्या आपको डिमोटिवेट किया था या फिर उससे मोटिवेशन मिला?
मैं अगर अपनी बात करूँ तो थोड़ा सा मैं मतलब आई पर्सनली फील आई एम नॉट द राइट पर्सन टू हाईलाइट द स्ट्रगल ऑफ दिस एग्जामिनेशन। जो लोग पहले प्रयास निकल जाते हैं ना, हम जैसे लोग जो 85 साल में एग्जाम दिया और निकल गए, दे आर नॉट द राइट पर्सन टू बिकम मोटिवेशन एक्चुअली, बिकॉज हम जैसे लोगों ने कभी स्ट्रगल देखे नहीं। लेकिन मोटिवेशन ओनली देखेंगे जिन्होंने स्ट्रगल देखा है फेलियर्स का, बिकॉज वन द होली पीरियड कम्स आउट एवरी ईयर इन मे, मतलब यूपीएससी का रिजल्ट को एक लोग होली पीरियड बोलते हैं। जब वो होली एंड बायस पीरियड कम्स आउट एवरी ईयर, तो कुछ लोगों का जो है वो सेकेंड से अंदर क्लास शिफ्ट हो जाता है। क्लास शिफ्ट का मतलब क्या है समाज इस हमारी सोसाइटी में कि 10 सेकंड पहले तुमको कोई नहीं जानता था, सब लोग बोलते थे बाहर घूमता है, इसका तो होगा ही नहीं, ये कैसे हो जाएगा, दूर खेलता रहता है। और 10 सेकंड में क्या बोलेंगे, मैं बचपन से जानता था ये लड़का लड़की बड़ा करेगा, मैं तो बचपन में ही बोल दिया था कि ये कोई बड़ा बनने वाला है। ठीक है, और मतलब आई शुड से और नॉट, मतलब विद इन मिनट्स यू विल गेट द कॉल्स ऑफ योर पर्सन जिनको आपने भी सपने में नहीं सोच सकते। I should say, be it the Chief Minister, be it the Prime Minister also. There is no any surprise if any topper is getting the phone call of Prime Minister. कोई बहुत बड़ी बात आता है लोगों के पास। ये on behalf of students and on my behalf as well, मैं एक क्वेश्चन ऐसा पूछना चाहता हूँ कि जैसे कोई एस्पिरेंट है and this aspirant, आप प्लीज आप बैठ जाइए, आराम से पूछिए। This should be the informal talk, it should not be like formalized. no sir, on behalf of them I am speaking, so it is very easy to understand. My question is very simple. I have seen my friend, he appeared, filled up the form and got selected into PT and then into men's and then went for the interview, but then afterwards he didn't qualify the interview. Next time he was not selected even for PT. So why it happens once you cross the stage 1, stage 2, so with so much precision, and then next time suddenly you didn't get your PT clear. So what actually lacks in that? The very answer of this question is the nature of this examination. ये एग्जाम का नेचर ही ऐसा है। आई नो एटलीस्ट 100 ऑफ पीपल जो इंडियन रेलवे सर्विस में है, इंडियन पुलिस सर्विस में है, फिर से एग्जाम दिया IAS के प्री हुआ। मेरा बैचमेट ही इतना ज़्यादा है तो IRS में है, IPS में है, सब में है, फॉरेस्ट में है। इस साल जो 23 का परीक्षा में प्रीलिम्स दिया, उनका प्रीलिम्स भी नहीं हुआ। तो इट इज़ द नेचर ऑफ दिस एग्जामिनेशन कि आप, क्योंकि इसका एक मुख्य कारण ये है कि जैसे कि मेरा रिजल्ट आया था 30 मई 1:15 2022। अगला प्री था 5 जून को, तो यू हैव ओनली 4 days टू मतलब द थिंग रिवाइज वट एवर इज टू बी आस्क्ड। लेकिन एक जब जो इंसान फाइनल इंटरव्यू देके आता है उसको एक उम्मीद हो जाती है कि मेरा हो जाना चाहिए, क्योंकि जो फाइनल इंटरव्यू पहुँचते, व्हाट इज इंटरव्यू? Interview is like some 15 minutes short of being IAS. इंटरव्यू का मतलब क्या है कि आप एक IAS या फिर भारतीय पुलिस सेवा या फिर जो भी आपकी वो है उससे आप 20 मिनट दूर हैं। कुछ लोग बाहर हो जाते हैं, कुछ लोग अंदर आ जाते हैं। तो इंटरव्यू के बाद इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट कि मेरा नाम इसमें नहीं आ पाया, बिकॉज आपने सब कुछ दे दिया, सारा अपने एफर्ट पुट कर दिया, आपने जो भी था आपने सब कुछ लगाया, लेकिन पूरे मन का प्रयास बहुत बार नहीं हो पाता है। इस कारण से आपका चयन हो जाता है। लेकिन मैनी टाइम्स लक इज इटसेल्फ, लक इज द बिगेस्ट फैक्टर। इस एग्जाम में 80% आपका रोल है आपके स्मार्ट वर्क का, आपकी मेहनत का, एंड 20% रोल है लक का, एंड एट टाइम्स 20% प्रीडोमिनेट्स ओवर 80%। एग्जाम्पल, मेरे रूममेट थे, डॉक्टर थे एम्स से, उनका आखिरी अटेम्प्ट था
उनका नंबर आया प्रीलिम्स में 92.5 पर, कट ऑफ था 92.5 पर इक्वल। उनका नंबर सीसेट में आया 65.5, कट ऑफ था 66.5। एक नंबर से सीसेट में वो भी लिस्ट से बाहर अटेम्प्ट था। तो दिस इज व्हाट हाईलाइट्स द लक, नेचर ऑफ लक इन एग्जाम। बट ऑल सेट एंड डन, डेफिनेटली रियलिटी, अगर हम रियलिटी चेक करें इस एग्जाम के बारे में, तो अगर मान लो किसका क्वेश्चन नहीं हो पाएगा पीएससी के अंदर, तो ऐसा नहीं ही इज फेलियर, ही और शी इज फेलियर, ही और शी विल डेफिनेटली सक्सीड इन सम सॉर्ट ऑफ द करियर और अदर। अच्छा ये बताओ कि इसमें से कितने लोग जानते हैं सुंदर पिचाई को? सुंदर पिचाई से जानते हैं। सुंदर पिचाई के जो फादर थे, ही वॉज अ वेटरन IAS ऑफिसर। 1989 में लबासना में डायरेक्टर हुआ करते थे। सुंदर पिचाई ने 3 बार प्रीलिम्स दिया है, उनका 3 बार प्रीलिम्स पास नहीं हुआ। और आप सुंदर पिचाई कौन है? आई डोंट थिंक इट इज एक्सटेंडेबल है। ऐसा कई सारे पॉलिटिशियंस हैं, इतने स्टार्वर्ड पॉलिटिशियन हैं, इतने स्टार प्रोफेसर हैं, सब ने कहीं ना कहीं अपने जीवन में ट्राई किया है। और जितने लोग दिल्ली आए थे ना 1980s में, 1970s में, 1990s में, उनके कहीं ना कहीं उनके मन में था कि IAS की परीक्षा देना है। ड्यू टू सम फैक्टर इट इज नॉट क्लियर। आज देखिए हम लोग को पढ़ते हैं तैयारी में, उन प्रोफेसर को पढ़ते हैं, उनका पॉलिटिशियन का स्पीच सुनते हैं, कई सारे एग्जाम्पल है। तो इट इज़ नॉट के आपने जो कहा कि फिर ऐसा क्यों होता है ऐसे, क्योंकि एग्जाम का नेचर ऐसा है। यू कैन नॉट बी वेरी श्योर। जैसे नॉट टू टेक एनी नेम, आई नो समवन टू सिक्योर रैंक 1 इन दिस एग्जामिनेशन। उनका पूरे भारत में रैंक 1 आया था। रिजल्ट के कुछ दिन पहले मेरी उनसे बात हुई तो वो बोलते हैं कि मुझे लगता है कि मैं तैयारी करना चाहिए दोबारा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की, क्योंकि मेरा तो बिल्कुल नहीं होने वाला है साल। अब वो पूरे भारत में रैंक 1 आया है। तो even understand the complexity of this examination, कि the person who is going to secure rank 1 after 10 days, he or she also saying कि मुझे लगता है कि मुझे वापस तैयारी करना चाहिए प्लीज, क्योंकि मेरा तो नहीं होगा ऐसा। कि मेरा तो नहीं होगा, सबका हो जाएगा। सर यहाँ पे एक थोड़ा क्वेश्चन है, आप ऐसे छात्र छात्री से कथा जमावल की सारी सुन हमार परीक्षा दी है, तो क्या कोविड, पूरा कोविड, ऑल इंडिया ऑल वर्ल्ड लॉकडाउन अब क्या करते मेन्स एग्जामिनेशन दिए सेकेंड कोविड হৈছে আৰু सर्व जी पूरा प्रोफाइलों पूरा गम पालो सारे 170 मार्क्स क्वेश्चन एरिया है 170 मार्क्स एरिया हापिसो कोविड हाल के आंसर लिखिब पारा ना किंतु सारे टाइम कैसे जे मैं एजी IAS पालो 247 रैंक फर्स्ट अटेम्प्ट because of my men's result. So my question is that you should let our student know that how to read the question, what to write, what should be the content, so that you should believe that you are going to score. Right. So कोविड का जो क्वेश्चन आ गया है, एक तो आपने पूछा था अभी शायद कोविड के बारे में आपने पूछा था, ठीक है। तो एक्चुअली मैं जिस टाइप का इंसान था अभी भी हूँ इन द एकेडमिक साइड ऑफ द कॉइन, मतलब पता नहीं वो जिद मान लो या बचपना मान लो आई की वजह से कि मतलब मुझे पहले अटेम्प्ट नहीं करना है। दिस इज नॉट अ करेक्ट हैबिट एट ऑल। नाउ आई मतलब इनसाइड आई फील कि दिस इज नॉट एट ऑल करेक्ट परसेप्शन कि आपको पहले नहीं करना है। 10 अक्टूबर को हमारा प्रीलिम्स था, उसके पहले 25 जुलाई को हमारा MPTCS का जो APSC सर्विस होता है, स्टेट सर्विस, उसका प्री था। मेरा कोई मन नहीं था कि स्टेट सर्विस देने का, लेकिन समवन बोर्ड ने कि उनका दे दिया। हमारा फर्स्ट एक एक्सपोजर होगा 3 एग्जाम से, तो आई गिव दैट एग्जाम से 25 जुलाई। उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में, 80 क्वेश्चन के आंसर मुझे पता थे, लेकिन जो OMR शीट होता है, मेरा फर्स्ट टाइम रियलिटी चेक था OMR के साथ जीवन में, कभी से तो OMR बना नहीं था।
तो मैंने 12 को पूरे गलत कर दिए थे। मतलब 12 क्वेश्चन आई मार्क करेक्ट इन द क्वेश्चन पेपर, बट आई फिट रॉन्ग इन द OMRC, क्योंकि बाद में मेरा प्रिलिम्स हो गया, कट ऑफ कम गया था। लेकिन वो इतना मुझे सदमा सा लग गया कि अगर मेरा MPPCS का नहीं हो पा रहा है तो UPSC का तो क्या ही होगा। एंड आफ्टर दिस हेल्थ इशू मेरे में जानना होगा कि आई गॉट अल्सर इन स्टमक एंड आई वॉज टिल 6 अक्टूबर आई वॉज ऑलमोस्ट हॉस्पिटलाइज एंड 10th को मेरा एग्जाम था। और तो मेरा प्रिपरेशन पहले से अच्छा था, लेकिन मैंने जो था ना लास्ट मिनट प्रिपरेशन जिसको बोलते हैं लोग कि आखिर टाइम तैयारी करना चाहिए, वो मेरा नहीं हुआ था। तो मैंने सोचा कि मेरे साथ एग्जाम नहीं होगा क्योंकि मेरा तैयारी नहीं है और मुझे पहले बार भी निकालना है एट एनी कॉस्ट। बट समवन टोल्ड मी वन थिंग कि व्हाट मैक्सिमम कैन हैपन, तुम्हारा नहीं होगा, इससे ज़्यादा तो थोड़ी नुकसान हो नहीं जाएगा देश को तुम्हारे ना होने से, और देश सुरक्षित हाथों में है। तुम चाहे IAS बनो या ना बनो, तो बेहतर ये है कि तुम एक बार ट्राई तो कर ही लो। तो 10th को आई गेव द एग्जामिनेशन और प्रीलिम्स कमिंग आउट, आई वॉज श्योर कि प्रीलिम्स हो जाएगा, कट ऑफ जाएगा 90 के आसपास, मेरा 100-115 नंबर 105 नंबर आ जाएगा, तो प्रीलिम्स हो जाएगा। नाउ कोविड चल ही रहा था, तो आई केम बैक एट होम। 7 जनवरी से हम लोगों का एग्जाम था 2022 में, एंड देयर वाज अ पीक पीरियड ऑफ कोविड-19, सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 आउटब्रेक इन दिल्ली। उसमें ऑलमोस्ट लॉकडाउन नहीं था, लेकिन वीकेंड्स पर लॉकडाउन था। दिल्ली में क्या है कि सेकेंड वेव में वीकेंड्स पर लॉकडाउन था, और हम लोग का एग्जाम होता है वीकेंड्स पर, UPSC का मेंस। तो आप लोग पता होगा कि UPSC में 9 एग्जाम होते हैं मेंस में, 2 होते हैं प्री में, 9 होते हैं मेंस में। आपका पहले एग्जाम होता है ऐसे का, एक ही एग्जाम होता है पहले, फिर नेक्स्ट दिन GS 1-2 9 से 12 2 से 5, नेक्स्ट दिन GS 3-4 एंड 50 का 4 दिन का। सैटरडे को होता है फिर पेपर, लैंग्वेज पेपर जो आपको कंपलसरी होता है, सिर्फ पासिंग होता है, क्वालिफाइंग होता है। आपका SMS होगा, मेरा हिंदी और इंग्लिश तो कंपलसरी होता है ऑलमोस्ट, हिंदी इंग्लिश का, और नेट सबसे आखिरी में होता है ऑप्शनल। सेकंड का एग्जाम था, आई वेंट टू दिल्ली ऑन 4 Jan एंड कोविड को ट्रेंडिंग हो गया था, क्योंकि इतना ज़्यादा लहर था उस समय। तो वहाँ इतना मुझे दिक्कत आया कोविड में कि मतलब अगर कोई UPSC बारे में जानता हो या सिलेबस एग्जाम, तो आप सब जानते हैं कि UPSC एग्जाम में टाइम का बहुत इंपॉर्टेंस है। आपके पास 3 घंटा होता है, 3 घंटे 20 क्वेश्चन होते हैं, वो क्वेश्चन आपकी जिंदगी फर्स्ट टाइम देखे होते हैं, आपने इससे पहले क्वेश्चन देखा नहीं होता है एक क्या पूछा है। 20 मिनट्स आई ऑलमोस्ट वेस्टेड इन एवरी पेपर। 50-20 मतलब कि फिर क्या हुआ कि ये इसके थोड़ा सा छोटे हॉल में अकेले बैठा दिया था कि मतलब एग्जामिनर वॉज सो काइंड टू मी कि उन्होंने मुझे हटाने के अलावा मुझे अकेले बैठा दिया कि आप अकेले बैठ सकते हो। मैं अकेले बैठ के एग्जाम दिया था आपसे, 15 मिनट 20 मिनट वेस्ट भी हुआ, लेकिन फॉर्चुनेटली ड्यू टू सम ऑफ माई कंटेंट पार्ट, क्योंकि मैंने लास्ट 1.5-2 साल में कंटेंट पर मेहनत किया था। क्योंकि UPSC का जो आपको लक्ष्मीकांत किताब दिया है, ये लक्ष्मीकांत एक बेसिक किताब है, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम लक्ष्मीकांत इन द मेंस एग्जामिनेशन, बट विदाउट लक्ष्मीकांत ऑल्सो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन द मेंस एग्जामिनेशन। दिस इज अ डायकोटोमी कि आपको लक्ष्मीकांत पढ़ना पड़ेगा, लेकिन लक्ष्मीकांत से आपका एग्जाम नहीं देगा। तो मैंने क्या किया कि सिलेबस का हर पॉइंट जो मेंशन है उसमें मैंने इतना जगह से नोट्स बनाया था। जैसे मान लो एक टॉपिक है रोल ऑफ NGO इन डेवलपमेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी इन गवर्नेंस प्रोसेस। तो आई यूज्ड टू हैव 4-5 पेज नोट्स ऑफ NGO, वो कैसे होंगे। जैसे अभी मैं वो कंटेंट नहीं बोलूँगा क्योंकि वो आप लोगों को भी तैयारी आपने स्टार्ट नहीं किया है, तो दैट विल नॉट बी पर्टिनेंट नाउ, बट डेफिनेटली वी विल मेक सम अदर टाइम एंड डेफिनेटली आई विल कि वो कैसे करना होता है। वन थिंग शुड, चलो एग्जाम्पल देता हूँ। डोमिनोज पिज़्ज़ा सब लोग गया होगा, वहाँ जिसने एक चीज़ 2 चीज़ मेंशन किया है, 2 चीज़ ऑब्जर्व किया है कभी कि जब वो पिज़्ज़ा बनता है तो वो गिलास ट्रांसपेरेंट है, वो दीवार नहीं बनाया हुआ है पिज़्ज़ा बनाने के अंदर। मतलब कोई किसी ने देखा, ऑब्जर्व किया है कि जब वो पिज़्ज़ा का प्रिपरेशन करता है तो जो कस्टमर बैठे हुए हैं उनसे छुपाता नहीं है वो कि कैसे बना रहा है, या फिर गंदा किचन गंदा तो नहीं है। दिस इज द एग्जाम्पल आई रोट इन द कॉर्पोरेट एथिक्स, समझ रहे हो? दिस इज द एग्जाम्पल यू हैव टू राइट इन कॉर्पोरेट एथिक्स। जैसे कि मान लो कि जोमेटो वाला ऑर्डर लेके आता है, वही बात बोलते हैं कि सर रेटिंग कर देना। तो दिस इज वॉट
when UPSC asks a case study on you, you are a district collector and your subordinate staff is not motivated enough to work. चुनाव आता है तो आप लोग देख पता होगा आप लोगों के चुनाव आते ही वो है शादियाँ आ जाती हैं, तबीयत खराब होने लगती है, छुट्टी मांगते हैं वो चुनाव में. तो दिस इज हाउ these are the example you have to write कि this is how you can keep your staff motivated by staff rating. Like the district collector will give a pen also to his peon, a pen of 5 rupees to his peon in front of everyone, and will post a social media a picture on social media with district collector official handle. That is sufficient enough to motivate the staff. अगर कोई डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर डीसी पर अगर किसी अपने सबऑर्डिनेट स्टाफ को प्यून को थर्ड ग्रेड स्टाफ को अगर एक सर्टिफिकेट दे दें सबके सामने उसका फोटो अखबार में छप जाएगा, दैट इज इनफ टू प्रोपोगेट द मैसेज. तो आपको ऐसे एग्जाम्पल नोट करने पड़ते हैं अपने एग्जाम में, आपको ऐसे एग्जाम्पल देने पड़ते हैं, तभी आपको एक्स्ट्रा जो आप समझ में आए कि एक्स्ट्रा मार्क्स कैसे मिलता है. वो एक्स्ट्रा मार्क्स ऐसे ही मिलता है. अदरवाइज एवरीबॉडी इज राइटिंग कि एनजीओ का डेफिनेशन क्या होता है तो सबको पता होता है जो एग्जाम देने वाला होता है. व्हाट मेक्स द डिफरेंस इज द व्हाट काइंड ऑफ सब्सटेंटिएटेड पॉइंट्स यू आर राइटिंग, व्हाट काइंड ऑफ एग्जांपल एंड केस स्टडी यू आर राइटिंग, दैट मेक्स योर आंसर वेरी वेरी डिफरेंट. जैसे कि अब आई कैन नॉट से कि मेरा ऊपर करना मुझे रिस्पांसिबिलिटी मत दो, जिसको हम जानते हैं मत छोड़ो, दिस कैन नॉट बी आर्गुमेंट. So the point I am trying to make is that from the day one you are supposed to be anything, not related to IAS. अगर वो क्रिकेटर बनना है, आपको डांसर बनना है, म्यूजिशियन बनना है, तो आपको उसमें इक्वली मेहनत करनी पड़ेगी. और आई वर्ष से इससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. अगर आपको सिंगर बनना है तो इससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. तो बस मैं चाह पाने की चाह ही हमसे पड़ेगा. So all the very best to all of you presenters. And at the last, I, from the side of district administration, from the Honorable District Commissioner side, you are on the ISR side, I extend my sincere gratitude towards the subject principal, Samadhyam College, all the esteemed faculty members, all the students present here who have taken this name to invite us and have some sharing, experiences sharing with all the students. I just hope that in the coming period of time, we मतलब टेबल टर्न हो जाएगी और आप लोग यहाँ बैठे होंगे और यहाँ स्पीक आप लोग दे रहे हैं. आई जस्ट होप दिस थिंग वेरी सून विल डेफिनेटली कम.